Let me start by saying that this year's monsoon is very different than other year's monsoon. अब summers गर्म हुए हैं, इससे क्या है? एल नीनो तो हर साल होता है या फिर कुछ साल में रिपीट होता रहता है। इस साल का क्या कंडीशंस है? अब क्वेश्चन इज कि ये जस्ट द फेलियर्स ऑफ मॉनसून है कि सरकारी चीजों के साथ भी ये कनेक्टेड है। लेट्स डिकोड इट हियर। बैक का डिकोड करते हैं। टर्की में भी किया था एक, आई थिंक वर्ल्ड कप बोल रहा हूँ, वर्ल्ड कप चल रहा है ना इसलिए। टर्की में भी एक अर्थक्वेक आया था, तो वर्ल्ड कप के बारे में याद आया। टर्की इज आउट, यू कंटिन्यू। या जर्मनी is out as well. चाय, कॉफी, भुट्टास, समोसा, पकौड़ा। whatever. Entire nation celebrate the coming of the rain. और रूम पे आके आई एम वार्म एंड टोस्टी एंड ड्रिंकिंग वार्म ग्लास ऑफ वाइन। बंदा अपने खिड़की के बाहर वो ऑमलेट बना रहा था। People who say that eggs should be included. बंगाल का कल्चर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया। पानी वाला दाल भी देखा है स्कूल्स में देते हैं। जो मेरी फीलिंग्स है उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। 70-year-old people tree fell down and crushed the bus. One boy died, unfortunately. कि इंजीनियरिंग सेफ्टी मैनुअल्स आर रिटन इन ब्लड। इनको कितने लाइंस लिखने हैं अपने रूल बुक्स? क्या पूरा पन्ना ही ब्लड से लिख देना? एसओपीस एग्जिस्ट करते हैं कि मेंटेनेंस होगा एवरी 3 to 6 months। जो रोड के राउंड जो पेड़ है उसका ट्रिमिंग होगा। 1500 people that died, blood is on their hands। The infrastructure obviously is not prepared to handle that kind of heat. हीटर बंद करो सर्दियों में, तब जाके मानूंगा ना तुम्हारी एनवायरमेंटली फ्रेंडली। इंडिया में कुछ ऐसा होता बवाल हो जाता। कम्युनिटी के लोग गाली देंगे कि तुमने राम मंदिर के नाम पे जितना भी खून बहा है, जिस लेवल पे करप्शन हुई है, जो हमारे स्टैंड अप कमेडियंस है उनके ऊपर बिल फाड़ देते। आई एम नॉट सेइंग कि उन्होंने गलत नहीं किया, ऑब्वियसली किया है गवर्नमेंट, लेकिन उस लेवल पे आके एक बंदे को प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, व्हाई? और उनके केसेस को एक्सपेडिट कैसे हो रहे हैं? वो सब केसेस 5 साल कैसे नहीं रुक रहे? मोदी जी ट्राइड हिज बेस्ट ड्यूरिंग द फॉर्मेटिव इयर्स, स्वच्छ भारत अभियान, गंगा क्लीन मिशन एटसेट्रा। दैट इज द मोस्ट कंपेलिंग आर्गुमेंट दैट आई हैव heard from different parties altogether. Well, the monsoon is finally here, and after a couple of months of blistering summer, endless heat, when stepping outside was like walking into an oven, the clouds have finally arrived. Okay, and probably India is only one of the few countries where the entire nation celebrates the coming of the rain. Like it's like a festival in this country. Everybody's excited, right, to go out, road trips, bike rides, summer vacation in a hill station or something like that. Social media is flooded with stories of chai, coffee, buttas, samosas, pakoras, whatever you like, right? And then to the icing on the cake is the Bollywood music, old or new, whatever you like. Both. But yeah, one thing we can say that although the rain is beautiful, but it is also unforgiving. After days of incessant rains, the problems start showing in our society. The footholds gets filled up, traffic jams, train delays, and many other problems, waterlogging, floods, and we see a different side all around us, right? So the big question is that most people ask: why does the monsoon bring our cities and towns to a standstill every single year? And why are we not prepared? Even after so many years of struggling through the problems, we have not prepared ourselves to deal with it. That's the big question. So let me start by saying that this year's monsoon is very different than other year's monsoon. First of all, इस साल जो monsoon हुई है, it is late by around 3 days. Generally क्या होता है कि जून के 1 तारीख तक monsoon आ जाता है, ठीक है? It came to in India, केरला का monsoon देखा जाए तो केरला के साइड से हम लोग काउंट करते हैं, even though सेंट्रल इंडिया में कितने लेट आता नहीं आता है, that's a different issue altogether. It's late by 3 days. अब लोग बोलेंगे 3 दिन कुछ नहीं होता, आगे की कहानी सुनो तुम। इस साल बोल रहे हैं कि 90% चांस है कि पिछले जो एवरेज ईयर्स में जितने मॉनसून के पानी गिरा है उसके एवरेज में 90% गिरेंगे, और 60% चांस है कि जो मॉनसून है इट विल बी डेफिशिएंट। तो घूम फिर के प्रॉब्लम्स क्या है कि इंडिया इज एन एग्रीकल्चर सोसाइटी, कितना भी डेवलप हो जाए, अराउंड अबाउट 40 to 50% अभी भी एग्रीकल्चर के साथ बाय अ सर्टेन मेजर जुड़े हुए लोग हैं। तो क्रॉप्स फेलियर्स ये सब चीजें हो सकती है, गिवन द फैक्ट कि रशिया यूक्रेन वॉर एज वेल एज द मिडिल ईस्ट के जो टेंशंस है एक्सर्सिबेट करते हैं ये सब चीजों को लेके, है कि नहीं? तो इन्फ्लेशन माइट बी देयर, गवर्नमेंट इज सेइंग कि नहीं कंट्रोल के अंदर है। सेकेंडली, सेंट्रल इंडिया में बोल रहे हैं कि इस साल कि बहुत ही कम मॉनसून आया है। सेंट्रल इंडिया में बोला जाए तो रफली 60% डेफिसिट है जितना होना चाहिए।
अब क्वेश्चन इज कि ये जस्ट द फेलियर्स ऑफ मॉनसून है कि सरकारी चीजों के साथ भी ये कनेक्टेड है? लेट्स डिकोड इट हियर, बैठ के आज डिकोड करते हैं कि क्या है, पूरा निचोड़ के देखते हैं। एल नीनो जो कंडीशंस हुए हैं उसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। लास्ट 100 साल 150 साल के अंदर इट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एल नीनो। अब लोग पूछेंगे कि एल नीनो क्या है? एल नीनो मतलब सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ओशंस जो होते हैं उस एरिया में जो ओशन के वाटर के जो ऊपरी हिस्सा रहता है वो वार्म हो जाते हैं, जिसके कारण हीट वेव्स पैदा होते हैं और जो समर्स होते हैं वो बहुत गर्म होता है, जो तुमने थोड़ी देर बाद पहले बोली थी। अब समर्स गर्म हुए हैं, इससे क्या है? एल नीनो तो हर साल होता है या फिर कुछ साल में रिपीट होता रहता है। इस साल का क्या कंडीशंस है कि जो इंडियन ओशन के ऊपर डाइपोल होता है, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें होती है दैट कंट्रोल्स वेदर ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ठीक, तो इंडियन ओशन का जो डाइपोल है वो न्यूट्रल है, फिर सोमालियन जेट स्ट्रीम जो है वो भी वीक है। ऐसे करके जो 5 चीजें हैं, टोटल बहुत सारे कंडीशंस रहते, 5 चीजें इस साल क्या हो गया, बहुत ज्यादा ओवरलैप कर गई, इसलिए हीट वेव्स के कंडीशंस बहुत ज्यादा हो गया। मैं अभी रहता हूँ बंगाल में, मेरे को फीलिंग आई कि इस साल बारिश ही नहीं हुई। लास्ट 2 to 5 years में क्या होता था कि एवरी टाइम द टेम्परेचर स्पाइक्स अबव 37 to 40 डिग्री सेल्सियस, विद इन अ डे और 2 बारिश आ जाती थी। तो आदमी लोग 2-3 दिन फिर अच्छे से चिल कर लेते थे, फिर गर्मी आती थी। इट्स अ साइक्लिकल प्रोसेस। इस साल क्या हुआ, अचानक से 7 दिन 10 दिन तक बारिश नहीं हुई थी। इलेक्ट्रिक ग्रिड्स के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है कि लोग पंखा एसी ये सब चला रहे हैं मोर, बिकॉज कूलिंग जरूरी है। ग्रिड स्टार्ट्स फेलिंग। इस साल बहुत ज्यादा ग्रिड फेल हुआ है। वोल्टेजेस वेंट टू डाउन, जहां पे वोल्टेज इंडियन गवर्नमेंट ने एक जगह पे लिखा हुआ था कि वोल्टेज शुड नॉट गो बिलो +-6% ऑफ 220 वोल्ट्स। मेरे पे रिकॉर्डेड है, मैंने 100 तक वोल्टेज जाते हुए देखा मेरे एरिया। अब एक चीज अच्छी बात है कि 100 पे वोल्टेज जाता है तो एटलीस्ट करंट तो है घर पे, पावर तो है। लेकिन 100 पे जो मेरा पंखा है, लाइट बल्ब्स है, वो सब तो पूरा खराब हो जाएंगे, बिकॉज दे आर नॉट मेड फॉर दैट। एक तो वो हो गया। अब ये एल नीनो के कंडीशंस, लोग बोलेंगे कि तो ये तो पैसिफिक ओशंस की तरफ है। यू आर करेक्ट, इंडिया में है, लेकिन एफेक्ट्स तो फील आए हैं। अब बात करते हैं कि लास्ट 1 वीक में क्या हुआ। 1 वीक में क्या हुआ, यूरोप में देखो 21 जून से लेके करंट डेट तक roughly 1300 to 1500 people have died in Europe, the so called developed countries। खराब बातें ऐसे बोलना नहीं होता। अब पीपल से कि इंडिया में चीजें खराब है, ऑब्वियसली है, क्यों नहीं है, वी हैव टू बी लाइक दैट। लेकिन कभी कभार चीजें ऐसी होती है, दे आर आउट ऑफ एनीबॉडीज हैंड्स। यू कैन नॉट जस्ट से कि गवर्नमेंट का फॉल्ट है, यू कैन नॉट जस्ट से कि ह्यूमन ने ही बनाया है। कभी मान लेते हैं कि वोल्केनो इरप्ट हो गई है, अब लोग बोलने लग जाएंगे क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज। अरे आदमी क्या ही करता, वेनेजुएला में 2-5 दिन पहले अर्थक्वेक आया है, किसको ब्लेम करो? ब्लेमलेस चीजें हैं। एक ही चीज कर सकते हैं कि हेल्प देम आउट, व्हिच आवर गवर्नमेंट डिड। लोग अभी भी मजाक उड़ा रहे हैं, लेट देम बी। हम अपना जो इंसानियत का जो एक कर्तव्य है उसको निभाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स इट। आई थिंक टर्की में भी किया था एक, आई थिंक वर्ल्ड कप बोल रहा हूँ, वर्ल्ड कप चल रहा है ना इसलिए टर्की में भी एक अर्थक्वेक आया था। तो वर्ल्ड कप के बारे में याद आया, टर्की इज आउट, यू कंटिन्यू। या जर्मनी आउट इज सो हाँ, टर्की में भी हुआ था वर्ल्ड अर्थक्वेक, सो इंडिया वेंट एंड हेल्प, लेकिन टर्की ने फिर वो धोखाधड़ी किया। ऑपरेशन सिंदूर में जो ड्रोन्स जो फायर्ड हुए थे पाकिस्तान की तरफ से, दोस वर टर्किश मेड। ओके, they provided Pakistan with their drones. That's why the whole controversy was created. Ki the Turkish were involved in the airline industry in India, so they were boycotted. Recently, the data आया था, they lost, I don't know, 100 billion or something like that. You know, the Turkish कंपनी थी yes, जिसकी वैल्यूएशन $500 million थी, उसकी वैल्यूएशन जीरो कर दी ओवरनाइट। देयर ऑल एम्प्लॉइज एंड टेक्नोलॉजी गॉट ट्रांसफर्ड टू अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑल टुगेदर। तो इंडिया से लात मार के निकाल दिया। ऑल्सो इंडिया वेंट टू आर्मेनिया एंड ऑल द कंट्रीज दैट आर नॉट इन गुड टर्म्स विद टर्की। तो हमने वो सब चीजें की, बिकॉज रेसिप्रोसिटी भी तो एक चीज होती है ना, वो रेसिप्रोसिटी नहीं दिखाओ तो प्रॉब्लमैटिक चीजें हैं। काम के टाइम पे हम लोग हेल्प कर रहे हैं, लेकिन तो लेट्स गेट बैक टू द मैटर ऑफ द फैक्ट। लेकिन तुझे बोल रहा था यूरोप का, people are saying that the Europe, obviously they are experiencing really high temperatures, abnormal temperatures, 35 degrees, 40 degrees, 40 डिग्रीज 45 मेरे degrees. यहाँ पे 40 Yeah. डिग्रीज टच नहीं हुआ है। आई एम इन बंगाल, Yeah. इन द सदर्न पार्ट ऑफ बंगाल, दैट टू। और हम टच नहीं हुई है। इंडिया में we are used to 35 degrees normal है, summers में 35 degrees, 35 35 to normal है। But नॉर्मल है। what
happened here is, though थोड़ा सा अजीब है कि the 30 degrees in Europe feels more difficult to bear than the 30 degrees or 35 degrees in India. Now, why is that? देखो, दो पहलू है। सबसे पहले तो बोलना बहुत ईजी है कि यूरोप का 30 और इंडिया का 35 वेरी डिफरेंट। इंडिया इज अ बिग कंट्री, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। दिल्ली का 30 डिग्रीज डिफरेंट देन कोलकाता 30 डिग्रीज, एवरीबडी नोज दैट। सेम गोज कि चेन्नई का 30 डिग्रीज विल बी डिफरेंट देन गुजरात 30 डिग्रीज। तो इंडिया एज अ होल यू कैन नॉट से कि इज डिफरेंट। एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन humidity levels of a particular place that makes one feel more hot or cold. If you are in a place where humidity is less, then 30 degrees is very bearable. Whereas a place where humidity, and I'm saying relative humidity, is more than 80%, 85%, then you are doomed. Same goes, let's only talk about, let's say कि France and UK, उन दोनों के बारे में बात कर सकते हैं because they are very close to the sea open waters. तो वहां पे ह्यूमिडिटी कंडीशंस बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, उनका जो लैटिट्यूड है, आई थिंक लैटिट्यूड बोलते हैं अगर नॉर्दर्न साइड की तरफ जाते हैं, आई थिंक लैटिट्यूड के हिसाब से चला जा सकता है, मैं गलत हो सकता हूँ। लेट्स से कि वो ज्यादा नॉर्थ मोस्ट साइड पे है, और जो अर्थ का जो टिल्ट है उसको अगर हम लोग फिगर आउट करें तो करंटली दे आर फेसिंग अराउंड 18 आवर्स पर डे लॉन्ग डेज ड्यूरिंग समर्स। इंडिया में क्या है, वी आर फेसिंग अराउंड सुबह 5 बजे मैं सन देखता हूँ, शाम को तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे तक रहता है, तो आई एम फेसिंग अराउंड 14 आवर्स। वो लोग 18 आवर्स फेस कर रहे हैं। तो जो 4 आवर्स का जो एक्स्ट्रा हीट है वो कहाँ जाएगा? सेकेंडली, हमारे इंडिया में मैंने क्या बोला कि गर्मी पड़ती है, बारिश हो जाती है, वहां पे वो रिलीफ है नहीं। तो आई एम नॉट जस्टिफाइंग कि उनकी हीट और हमारी हीट सेम है। आई एम सेइंग कि उनकी ह्यूमिडिटी लेवल्स रिलेटिव टू मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, उसके कंपैरिजन में उनकी हीट क्या है कि प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन इंडिया की हीट भी खराब है, ये भी मानना पड़ेगा। नॉर्दर्न जगहों में लू करके एक चीज होती है, जहां पे जो गर्म हवाएं आती है, दैट आर वेरी डेट्रीमेंटल टू यू, सिर दर्द करने लग जाता है, ये सब चीजें हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे हीट किल्स पीपल, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। अब द क्वेश्चन इज, सब लोग हंस रहे हैं, चाइना के फार्मर्स हंस रहे हैं, यूएस के लोग हंस रहे हैं, जापान के लोग हंस रहे हैं, साउथ कोरिया के लोग हंस रहे हैं। व्हाई? द रीजन इज सिंपल। यूएस में 90% होम्स have ACs, Japan same, Korea maybe 80-85%, China 60%. अगर यूके एक छोटा सा कंट्री है, वो बोलते हैं कि वी डू नॉट यूज एसीज बिकॉज एसी इज डेट्रीमेंटल टू द अर्थ। Yes. एक बात बताओ, पृथ्वी में कहीं पे आग लग जाए और तुम अपने घर में एलपीजी जला रहे हो, कोई फर्क पड़ता है? दूसरी जगह तो लोग स्टोव में लकड़ी जला के आग बना रहे हैं। तो यूके इटसेल्फ कैन नॉट गाइड हाउ अदर कंट्रीज आर बर्निंग अप फ्यूल्स, स्पेशली चाइना देख लो। तो वन साइडेड अगर तुम लोग बोल रहे हो कि वी आर वेरी गुड पीपल, देन यू आर रॉन्ग। सेकेंडली, यूके में लेट्स अज्यूम माय अजम्पशन, आई एम रॉन्ग मे बी, लेट्स अज्यूम कि 8 to 9 months ठंडा रहता है, इट्स कोल्ड, तो उनके हाउसेस जो है वैसे करके डेवलप्ड है। सेकेंडली, ड्यूरिंग विंटर्स दे बर्न वास्ट अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स टू हीट देयर होम्स, आइदर डायरेक्टली नेचुरल गैस जलाते हैं, या फिर डीजल जलाते हैं, या फिर हीटर्स यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल हीटर्स, एंड दॉट इलेक्ट्रिकल हीटर्स देमसेल्व्स माइट बी यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स। करेक्ट? फॉसिल फ्यूल्स यूज कर रहे हो सर्दियों में, सर्दियों में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस करने का क्या होता है, इक्विवेलेंसी में बताता हूँ। कोई चीज तुम जलाते हो तो उसका 90% एफिशिएंसी होता है कि मान लेते हैं कि तुमने 3 BTU हीट प्रोड्यूस की है, BTU मतलब ब्रिटिश थर्मल यूनिट, तो तुमको इक्वल अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल जलाना पड़ेगा, रफली, मतलब 3 के हिसाब से 3 जलाना पड़ेगा। एसीज डू नॉट वर्क दैट वे। एसीज क्या करते हैं, रूम के अंदर अगर 3 BTU का हीट है, उसको तुमको बाहर लेके जाना है, तो यू जस्ट नीड 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट टू कूल द रूम बाय 3 BTU, दैट इज 1 यूनिट खर्च करो, 3 यूनिट हीट बाहर निकालो। कैलकुलेशन के हिसाब से ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स वो लोग बहुत ज्यादा पोल्यूशन करते हैं, लेकिन उनको प्रॉब्लम एसीज से है। तो आई थिंक जो एसीज के अराउंड लोग, स्पेशली जो वोक बोल लो, लिबरल्स बोल लो, या फिर सो कॉल्ड एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट बोल लो, उनके कैलकुलेशंस आर रॉन्ग। सेकेंडली, इफ दे वर सच एनवायरमेंटलिस्ट, उनके कार्स में एसीज नहीं लगने चाहिए थे, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, सर्दियों में उनको बड़े बड़े जैकेट्स रूम के अंदर लगाने चाहिए थे, rather than having put down their coat in a hanger, और रूम पे आके आई एम वार्म एंड टोस्टी एंड ड्रिंकिंग वार्म ग्लास ऑफ वाइन। अपना हीटर बंद करो सर्दियों में, तब जाके मानूंगा ना तुम्हारी एनवायरमेंटली फ्रेंडली। सेकेंडली, तुम्हारे पास अभी फ्यूल्स भी नहीं थे सर्दियों में जब रशिया यूक्रेन वॉर हुई थी। तो उनका जो लिटरेचर है कि एसीज यूज नहीं करेंगे, दैट इज मिसडायरेक्टेड। एसीज आर वन ऑफ द बेस्ट इन्वेंशन सो फार, जो बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज करके सर्दियों में भी हेल्प कर सकते हैं। एंड इवन
गर्मियों में हेल्प कर सकते हैं, इवन सर्दियों में भी हेल्प कर सकते हैं। बहुत सारे एसीज होते हैं जिसमें हॉट एंड कोल्ड फंक्शंस होते हैं। दैट इज एक बाल्ब होता है दैट कैन बी रिवर्स्ड। तो उनकी जो हिपोक्रेसी है, हिपोक्रेसी के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। बट 1500 पीपल दैट डाइड, ब्लड इज ऑन देयर हैंड्स। इंडिया में कुछ ऐसा होता, बवाल हो जाता। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, वी हैव सफिशिएंट डॉक्टर्स, सफिशिएंट बेड्स, सफिशिएंट टेक्नोलॉजी टू हेल्प पीपल इफ सर्टेन थिंग्स हैपेंस इन इंडिया। सो दे डू नॉट हैव एनी राइट टू लेक्चर अस कि हम अपने कंट्रीज में कैसे करके डील कर रहे हैं। हमारे कंट्रीज में इश्यूज है, वी विल फिगर थिंग्स आउट, यू फिगर योरसेल्व्स आउट फर्स्ट देन टॉक। क्यों जापान तो ऐसा रोता नहीं है? क्यों साउथ कोरिया तो प्रॉब्लम्स नहीं कर रहा है? क्यों यूएस में क्या लोग नहीं रहते हैं? 40 डिग्रीज 45 डिग्रीज कैलिफोर्निया देख लो, टेक्सास देख लो, लोग तो वहां पे जीवित है। और दैट टू बहुत ही अच्छे एनवायरमेंटल कंडीशंस है, AQI भी बहुत अच्छे हैं। हमारे इंडिया में गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि 50% के अबव हम लोग रिन्यूएबल सोर्सेज के ऊपर लेके जाए। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं रिन्यूएबल्स को लेके, हमारे जो प्रोडक्शंस है। लेकिन हमारे रिक्वायरमेंट्स भी ज्यादा है, इसलिए कोल पावर चीजें अभी भी यूज कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू टेपर ऑफ। लेकिन ये बोलना कि कल दिन तुम बंद कर दो, दैट इज वेरी रेसिस्ट ऑफ देम। सेम गोस, चाइना को ऑर्डर नहीं कर सकते। एक जगह पे एक चीज तुम अपना बाल्टी बनवा रहे हो, वो सब बनवा रहे हो चाइना से, तो पोल्यूशन नहीं होगा। अपने घर पे बनाओ ना, अपने बैकयार्ड पे, तब जाके पता लगेगा कि चाइना इंडिया क्या प्रोड्यूस कर रहे नहीं कर रहे। तो चाइना को बोलना इतना सही चीज नहीं है। दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट। या बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं ऑनलाइन, जो रेल रोड्स होते हैं वहाँ पे उनके, that is melting because the infrastructure obviously is not prepared to handle that kind of heat, right? Obviously, and जो वीडियोस वगैरह आ रहे हैं, एसीज खत्म हो गए हैं, एसी का शॉर्टेजेस है वहाँ पे, फैंस वगैरह नहीं है, तो फैंस ऑब्वियसली नहीं है। फैंस नहीं है, दिस इज इट कमिंग, पहली बार हो रहा है, आई थिंक इट हैज नॉट हैपेंड इन हिस्ट्री। सो या एक वीडियो देखा तुमने वो वाला कि एक बंदा अपने खिड़की के बाहर वो ऑमलेट बना रहा था, एक पैन बाहर खिड़की के बाहर, आई थिंक इट्स अ बिट एग्जैजरेटेड इन माय ओपिनियन। मैंने तो पूरा देखा। एक्चुअली उसने तेल डाला, ठीक है, उसके बाद उसने ऐसे डाला, अंडा फोड़ के फिर से फ्लिप किया एक बार, तो दैट वाज, हाँ, वो इंडिया में लोग ऐसे करते हैं, कार के बॉनेट में ऐसे डाल के बना देते हैं, तो दैट वाज क्वाइट समथिंग। हाँ, तो हाँ, कमिंग बैक टू इंडिया, इंडिया में रेन्स वगैरह आ गया, और मुंबई में अपेरेंटली इट्स दे हैव इशूड ऑरेंज अलर्ट इन मुंबई, लॉट ऑफ प्लेसेस हैव बीन फ्लडेड एज ऑफ नाउ। लेट मी गेट बैक टू हियर कि जो यूरोपियन देश है, वहां पे प्रॉब्लम्स एक ही प्रॉब्लम नहीं है कि गर्मी पड़ गई, दे वर नॉट रेडी ना एट द एंड ऑफ द डे। सेकेंडली, इंडिया में अगर कोई चीज की शॉर्टेजेस होती है, तुम्हें पता है कि मान लेते हैं कि दिल्ली में अ बार ऑफ सोप इज सेलिंग फॉर 9 रुपीज 50 पैसा, लेट्स से। और शॉर्टेजेस एक जगह पे है, मान लेते हैं दिल्ली में शॉर्टेजेस है, a person will buy a truckload of that soap from Bangalore with a price of 9 rupees and sell it to Delhi. This level of arbitrages happen in India. Same goes कि हमारे इंडिया में किसी भी प्रांत में अगर फैंस की कमी होती ना, भले प्राइस ऑफ फैंस might have gone up by 100 rupees within 2 days to a week max. I will say even within 2 to 3 days उस जगह पे फैन पहुंच जाती है। डेफिनेट, आई एम 100% श्योर। उनके पास जो क्या बोलते हैं इनको, चेन, क्या चेन बोलते हैं उसको, ऑपरेशन चेन क्या बोलते हैं, सप्लाई चेन्स भी सही से इन्होंने डेवलप किया हुआ नहीं है। और ये लोग वेकेशन पे जाते हैं, जाओ वेकेशन पे, सब कुछ छोड़ छाड़ के जाओ, डॉक्टर्स नहीं है, कुछ नहीं है, आईसीयू में कोल्ड वेस्ट पहन के कर रहे हैं। अब क्या ही बताएं। नाउ लेट्स गेट बैक टू मुंबई। हाँ, मुंबई का तो ऑब्वियसली, तो मेरा पॉइंट वही था कि लॉट ऑफ सिटीज इन मुंबई हैव स्टार्टेड फ्लडिंग सिंस yesterday. तो ऑरेंज अलर्ट इज बीइंग इशूड, एंड यस, दिस इज फ्लडिंग हो रहा है, बहुत सारे रोड्स वगैरह भर गया पानी से। इट हैपेंस एवरी ईयर, वी सी इट हैपनिंग एवरी ईयर, दिल्ली में होता है, मुंबई में होता है, बैंगलोर में होता है, ठीक है, सो इट हैपेंस इन मोस्ट ऑफ द सिटीज। सो व्हाई डू यू थिंक द इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट गुड इनफ to tackle this flooding, when we know that every year when the rain comes this will be an issue? Why is there not enough accountability regarding this? एक तो कल एक इंसिडेंट हुआ था मुंबई में, चेंबूर करके एक जगह है वहाँ पे मुंबई में, ठीक है, तो वहाँ पे एक स्कूल बस जा रही थी, एंड ऑब्वियसली स्कूल बस वो नहीं होता है कि 10 बच्चे डाल देते हैं, एक वैन टाइप का वो सिस्टम रहता है। So it was going, and then a people tree fell. A 70-year-old people tree fell down and crushed the
bus. Unfortunately, four students were injured, and one sustained injuries, and one boy died. Unfortunately, so obviously they are saying that it was unfortunate, but they also saying that that particular area was concrete was laid on that particular road. Concretization हुआ था road का, and maybe because of that concretization, the roots of the trees became weak over time, and with these rains, the tree fell and the accident occurred. And you would see a lot of these kind of accidents happening all over India in the coming days. Some what I heard, let me just say कि मैंने एक चीज सुनी कि people complained कि the trees had grown so much, it needed some cutting, some trimmings, etc. People complained, लेकिन उनकी कही बातें किसी ने सुनी नहीं। हमारे इंजीनियरिंग टर्म है, हमेशा मैंने पिछली बार भी एक एपिसोड में कहा था कि इंजीनियरिंग सेफ्टी मैनुअल्स आर रिटन इन ब्लड। इंजीनियरिंग में लेकिन एक चीज अच्छी है ना कि सेम चीज की प्रिकॉशन हम अगर ले लेते हैं तो नेक्स्ट टाइम जो नया लाइन लिखा जाएगा इट वुड नॉट बी रिलेटेड टू द अर्लियर रूल दैट वी हैव मेड बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर डेथ लाइक सिनेरियो दैट एग्जिस्टेड। Yeah. इनको कितने लाइंस लिखने हैं अपने रूल बुक्स में? क्या पूरा पन्ना ही ब्लड से लिख देना है? एसओपीस एग्जिस्ट करते हैं कि मेंटेनेंस होगा एवरी 3 to 6 months, जो रोड के राउंड जो पेड़ है उसका ट्रिमिंग होगा, एवरीथिंग एग्जिस्ट। मुंबई इज ओनली केपेबल ऑफ 25 millimeters of rain per hour। उसके जो ड्रेनेज सिस्टम है वो 1860s में बनाया गया था। कैन यू बिलीव इट? एंड नाउ मुंबई की जो प्राइस पर फुट स्क्वायर फुट है, देयर ड्राइवर्स न्यूयॉर्क एक आध जगह में उनसे ज्यादा। तो द क्वेश्चन इज हमारे जो पर कैपिटा इनकम है इट्स round about 1/20th of a place like London and New York City, 1/20। In price, it's 1 to 2 times of New York or London। Disparities बहुत ज्यादा है। लो लेवल पीपल के लिए कुछ नहीं है। मुंबई, तुम तो एक ही शहर की बात कर रहे हो। मुंबई में थोड़े दिन पहले अंधेरी में ट्रेन स्टॉप हो गया था, मेट्रो ट्रेन फ्लडिंग हो गई करके। ऊपर के जो ओवर हेड वायर्स है वो बिच्छन हो गए। ये क्या? तुम्हें क्या लगता है जापान में ट्रेन के जो ओवरहेड केबल है कितने बार बिच्छन हुए? हिस्ट्री में है कि जापानीज बुलेट ट्रेन हैज नेवर हैड एन इंसिडेंट जहां पे उसके कोई पैसेंजर्स मरे हैं। व्हाई? प्रिकॉशंस आर देयर, एसओपीज आर देयर, आर बीइंग फॉलोड। गाड़ी बना देना सफिशिएंट नहीं है, गाड़ी बना के टेस्टिंग करनी होती है, फिर जाके कोई एक्सीडेंट होती है तो उसके डेटा को रिपोर्ट करना होता है। एवरीथिंग इज देयर। गाड़ी बनाना तो 20% चीजें हैं। सेम गोस कि कोई भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाया, मेंटेनेंस इज द अदर 50%। इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रेन बनाने का टेंडर दिया था, वहां पे एक ट्रेन की कॉस्ट बोल रहे हैं 120 करोड़ से लेकर 160 करोड़ के बीच में। यहाँ पे बस ट्रेन का कॉस्ट नहीं है, फॉर द नेक्स्ट 35 years मेंटेनेंस का कॉस्ट भी एडेड है ऑन टॉप ऑफ दैट। क्यों है? वी अंडरस्टैंड ना कि ट्रेन के मेंटेनेंस नहीं होगा तो एक्सीडेंट्स विल हैपन। सेम गोस फॉर एवरी अदर प्रोजेक्ट्स। ये सब एसओपीज क्यों नहीं फॉलो होते हैं जो ऑलरेडी रिटन इन लॉ है? नहीं होते हैं। इंडिया में लॉ की कोई मान्यता ही नहीं है। एक केस चल रहा है 20 साल से। 2 दिन पहले तुमको न्यूज आई होगी, एक नर्स थी जिनका नाम मुझे पूरा नहीं पता, कश्मीर की बात है, 1985 to 1990, आई थिंक 1995 के आसपास की बात है। शी वाज हाँ, उसके केस को लेकर आई थिंक यासिन मलिक के नाम पे अभी तो 35 years के बाद कोई चीज होने वाली है। तो आदमी जाए तो जाए कहाँ जाए? वो किस जगह पे जाए? फिर जैसे ऐसा है कि थोड़े दिन पहले तक बहुत सारे जो हमारे स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं उनके ऊपर बिल फाड़ देते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि उन्होंने गलत नहीं किया, ऑब्वियसली किया है, लेकिन जिस लेवल का बॉयकॉट सोशली होना चाहिए वर्सेस एक पॉलिटिकली और गवर्नमेंट लेवल पे होनी चाहिए, आई थिंक दैट्स मिसप्लेस्ड। सोशल लेवल पे इफ अ पर्सन इज बीइंग बॉयकॉटेड कि उनके शोज में कोई नहीं जा रहा है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। या फिर उनके साथ कोई ब्रांड काम करना नहीं चाह रहा है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। गवर्नमेंट लेकिन उस लेवल पे आके एक बंदे को प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, व्हाई? और उनके केसेस को एक्सपेडाइट कैसे हो रहे हैं? वो सब केसेस 5 साल कैसे नहीं रुक रहे? तो इसका मतलब ये है ना कि सिलेक्टिव एक्सपेडिशन ऑफ केसेस हो रहे हैं एज कंपेयर टू व्हिच आर इंपॉर्टेंट केसेस, वो सब कभी आगे नहीं बढ़ते। तो प्रॉब्लम्स तो रूट लेवल पे है। हाँ, जुडिशरी में प्रोफेशनल ले लो कहीं there पे is भी है। problems. But yeah, रेन वाला तो आई थिंक इट्स आई डोंट नो व्हाई थोड़ा सा
it's difficult to wrap around wrap around your head why the problem is not being solved. क्योंकि every year we have the same problem. Same with pollution in Last- Delhi. Delhi में same है. लास्ट 20 years से सेम बात कर रहे हैं हम लोग. Yes. मैं और तू नेक्स्ट ईयर अगेन when we do the podcast we will talk about the same shit Yes. repeat में, और लोग हमारे आते नहीं बोलेंगे क्या बचा, कोई नई चीज बताता. Yeah, नेक्स्ट ईयर भी सेम बात कहूंगा मैं. Yeah, but there are countries who have tackled these kinds of problems. Japan is a very very good example. Japan has a lot of cyclone and floods. Uh, they experience a lot of these kinds of things, and they have built underground tunnels, which have helped them to tackle these kinds of disasters. Netherlands, जो मोदी जी ने अभी गए थे. Netherlands is basically based on a water sea, right? Based on water bodies, right? Entire city. They have handled the water really well. Singapore, even Bangladesh. Bangladesh also has a water issue where it rains a lot. They have also built water shelters and stuff like that. So as we can learn from a lot of other countries, but again, we can do it, but really, if we want to do it, that is the issue. क्योंकि आई थिंक इशू घूम फिर के है कि पॉलिटिकल विल करके एक चीज है, जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी तब तक प्रॉब्लम्स है. सेकेंडली पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर गवर्नमेंट को कितने बार लोग कसूरवार करेंगे. आई अंडरस्टूड वन थिंग ड्यूरिंग द लास्ट 10 years, government will only function as to what the public wants. Public wants corruption, government will provide the necessary steps for corruption. ठीक है, तो बस गवर्नमेंट के ऊपर भी बिल फाड़ना सही नहीं है. हमारे जो ड्रेनेज सिस्टम है, मान लेते कोई भी सिटीज में अच्छे भी है, कचरा भरा हुआ रहता है, किसने फेंका है कि नहीं. तो एक सर्कुलर सिस्टम है कि वी द पीपल बाय द पीपल, आई एम द गवर्नमेंट, वी आर द गवर्नमेंट एंड वी आर द पीपल. है, आई एम आल्सो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ना. मैंने अगर किसी को वोट दिया तो मैं भी तो गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ. वी आर आल्सो द सेम पीपल. सेम थिंग. वो फ्लड्स वगैरह भी आएंगे. अभी क्लाउड बस्ट कहीं पे हो जाएगा उत्तराखंड में. हर साल होता है. असम में फ्लड्स हर साल आते हैं. वी नो दैट. लास्ट ईयर असम में ब्रिज टूट गया, एक रेलवे लिंक था. वो तो होता रहता है यार. कल एक दीवार टूट गया कहाँ पे, मुंबई में देख रहा था मैं. दीवार ही गिर गया, बारिश हुई तो. It is a test of the infrastructure, obviously, and it shows how strong the infrastructure is, how much corruption happened while building. इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम भी नहीं है, मेंटेनेंस के इश्यूज है. मेंटेनेंस ऑडिट होते हैं भाई. मेंटेनेंस इज पार्ट ऑफ एवरी ईयर्स ऑडिट चेक सिस्टम. कि हमारे जैसे हावड़ा ब्रिज में बोल्ट चेक होते थे कि बोल्ट कितने खराब हुए हैं, रस्टिंग हुई है, नहीं हुई है, व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू डू इट. पेंटिंग होगी तो कितनी थिकनेस की पेंटिंग होगी, ये सब चीजें ऑडिट में पता लगता है. तो ऑडिट ही अगर खराब हुआ तो इंफ्रास्ट्रक्चर कितना भी अच्छा बना लो, बुर्ज खलीफा का मेंटेनेंस बंद कर दो, इट्स अ शिट प्लेस टू बी. जस्ट इमेजिन बुर्ज खलीफा में एसी खराब हो गया, बताओ. अंडरस्टैंड कि बुर्ज खलीफा में एसी बंद हो गया तो उस बिल्डिंग का जो वैल्यूएशन है कहाँ रह जाएगा. क्या है, कुछ नहीं है, यूजलेस है बिल्डिंग. तो जब तक मेंटेनेंस की चीजें हैं, तुम बस टालते रहोगे, ये सब कभी ना कभी इम्प्लोड करेगा ना. एंड पीपल आर लिविंग लाइक दैट. Obviously, इसका solution क्या है? ठीक है, governments are to be blamed to an extent. ठीक है, no matter what government or state government, we equally responsible है. Not supporting any political I party. think it's specifically state governments are responsible. Yes. तो आई थिंक अगर करना हो अगर ये सब, तो क्या क्या करने की जरूरत है? What needs to be fixed? तो बेसिक चीजें जो सब बोलते हैं कि the trains should be cleaned before monsoon arrives. We know the monsoon is going to arrive in July, August every year. So maybe we can organize a public cleanup of the drains in every state so that it doesn't get clogged up. तो चेक करें clogged up तो नहीं है, पहले से कचरा तो नहीं भरा हुआ, वो चेक कर सकते हैं. There is a system what you're talking about. You just check up मैंने different थोड़े- places of Northeast, Yes, Northeast में तो different states. Northeast का तो I'm अलग just case है. talking about a particular section of India which we, the people of the rest of India, can follow. I saw the same thing in Sikkim. I can say the same thing for the state of Nagaland, and I can also say that it also happens in the state of Mizoram. Yeah, I cannot say of other places. That every month, once on a Sunday or maybe a Saturday, the entire village or the entire colony comes and cleans things up. They tidy their place, and that's the name of the game. It's called social work. And They do not have a everybody concept. shows up. No matter you are the Everybody shows up. principal, Everybody, business everybody. owner. I saw Yeah. young kids, even though they are not so much helpful, but they were there. Yeah, at least moral बढ़ाने के लिए तो मोरल बढ़ाने के लिए तो रहते हैं वो. तो ये सब चीजें आई थिंक सोशल लेवल पे तुमने जो अभी बोला है वो एट द एंड ऑफ द डे लोगों को ही करना पड़ेगा. बट द रियलिटी ऑफ थिंग इज इंडिया में जो स्पेसिफिकली नॉर्दर्न स्टेट्स बोल लो और सेंट्रल स्टेट्स बोल लो,
वहाँ पे वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बिकॉज़ सबसे पहले कॉलोनी का डेफिनिशन नहीं है। कॉलोनी में एक जैसे हमारे एरिया में क्या होता था, कॉलोनी करके एक पॉलिटिकल नहीं, एक बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है जहाँ पे कम्युनिटी देयर इज अ प्रेसिडेंट, एग्जैक्टली, बट इट्स स्ट्रक्चर्ड यस and it's below the panchayats, and it's informal in a sense that it doesn't have any government standing as together, directly कोई government standings नहीं है, but community level पे it exists कि दिखाने के लिए on paper we have something। अब ये चीज नॉर्थ इंडिया में मैंने आज तक सुनी नहीं है। मैंने एक ही चीज सुनी है कि हमारे क्या बोलते हैं इसको, बिल्डिंग का ग्रुप, क्या क्या बोलते हैं उसको, सोसाइटी 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 बस सोसाइटी, वो तो डिफरेंट ही टेंजेंट पे चले जाते हैं कि हमारा सोसाइटी के ये सब हो सकते हैं। उनका बायलॉस पढ़ के तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। काम की चीजों को लेके तो है ही नहीं, लड़का लड़की क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, खुद के घर पे क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, उसी पे वो लोग क्वेश्चंस करने लग जाते हैं, भले ही तुमने अपना फ्लैट खुद खरीदा। तो उनका मोरालिटी दूसरी जगह पे है, कुत्तों को खाना देना उसके लिए है, जहाँ पे इवन कुत्ते लोगों को काटते नहीं इतना काटते, ऐसे आउटरीच कुत्ते की वजह से हुआ ना, उसका आधा भी इसकी वजह से हो जाए तो काफी फिक्स हो जाएगा प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम है आई एम सेइंग कि एक दो दिन डिस्कशन होगा न्यूज़ चैनल में, बस उसके बाद सब फिर वही पाकिस्तान बांग्लादेश जियोपॉलिटिक्स ट्रम्प ये सब चलेगा फिर। दैट इज द इशू। आई फील कि ऐसे डायरेक्टली मेरे पास डेटा पॉइंट्स नहीं है, जो मेरी फीलिंग्स है उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। मोदी जी ट्राइड हिज बेस्ट ड्यूरिंग द फॉर्मेटिव ईयर्स, स्वच्छ भारत अभियान, गंगा क्लीन मिशन एक्सेट्रा, लेकिन ऊपर से जो लोएस्ट लेवल तक आते 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 जो होता नहीं है, डम शराड्स, यू नो डम शराड्स द गेम where people say a certain word and if the word gets passed around it the word changes itself, the meaning changes। तो नीचे आते आते उसका मीनिंग पूरा चेंज हो गया, ऊपर से इतने पैसे आए थे, नीचे लेवल पे आके पूरा खुश हो गया। सेंट्रल करे तो करे क्या, मोदी जी अकेला तो पूरा इंडिया हाथ से तो साफ कर नहीं सकते। सब कुछ नहीं कर आईएएस लोग आईपीएस लोगों को सस्पेंड ही कर सकते हैं, उनकी तो वैसे भी कमी है। अब प्रॉब्लम दो तरीके से है, आईएएस आईपीएस इनको ले लो, तो ये लोग अगर काम करना चाहते तो पॉलिटिकल क्लास काम करने नहीं देगी, ठीक है। पॉलिटिकल क्लास अगर बोलती है कि नहीं हम लोग अच्छे हैं, तो आईएएस और आईपीएस करप्ट निकल जाते हैं। थर्डली, अगर बोलते हैं कि आईएएस आईपीएस पॉलिटिकल लेवल ये लोग सब अच्छे हैं, तो टॉप लेवल पे पॉलिटिकल विल नहीं रहती, तो क्या करें लोग। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस, आई थिंक पढ़ाई लिखाई को अलावा और कुछ नहीं हो सकता इंडिया में। एट द एंड मुझे अभी भी आई एम 100% बायस्ड इन दिस ओपिनियन, फोर्थ स्टैंडर्ड फिफ्थ स्टैंडर्ड तक हटाओ, स्टडीज हटाओ। इंडिया में कितने लोग पढ़ाई की वजह से सक्सेसफुल हुए, आईआईटीज में कितने 10,000 लोग एडमिशन लेते हैं, बाकी मान लेते हैं कि पूरे इंडिया में आईआईटीज को छोड़ के और 1 लाख स्टूडेंट ले लेते हैं, ठीक है, टोटलिटी में 1 लाख स्टूडेंट। बाकी भी तो स्टूडेंट्स पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, वो तो कुछ करके तो खा रहे हैं ना, कुछ तो करके खा रहे हैं, पापा का कुछ हो खुद का कुछ हो, कुछ तो बना के खा रहे हैं। डॉक्टर्स को ले लो, डॉक्टर्स कितने सीट्स है तुम बताओ। बहुत ही कम, 5,000 7,000 इतना ही आता है और कितना। तो पूरे इंडिया में तो तुम अगर बोलना चाह रहे हो कि 1.5 लाख ही अच्छे बच्चे, तो बाकी बच्चों का क्या है। तो अगर हमको बॉटम अप जाना है तो वी कैन नॉट फोकस ऑन दैट 1,50,000, जहां पे 1,50,000 में से 75,000 लोग बाहर चले जाते हैं दूसरे कंट्रीज में, बिकॉज इंडिया में वो लोग रह नहीं सकते। उनको अगर 10 लाख की नौकरी मिल रही है बाहर, वहां पे 1 करोड़ की मिल रही है, वाई शुडंट दे गो। वो डिग्निटी ऑफ लेबर भी जरूरी है जो हमारी कंट्री में नहीं है। नहीं है इंडिया में। तो जापान में देख लो, चौथे क्लास तक उनको ये सिखाया जाता है कि रहना कैसे है, कि लाइन में खड़े रहना है। यहाँ पे इंडिया में लाइंस देखा है तुमने कभी, ऐसे होता है, मतलब ऐसे करके एक जगह पे जाके मिलते हैं, फिर झगड़ा होता है, क्यों नहीं है लाइंस। राम मंदिर देख लो, लोग गाली क्यों नहीं देंगे, बाहर के कम्युनिटीज गाली देंगे, बाहर के देश गाली देंगे, दूसरे कम्युनिटी के लोग गाली देंगे कि तुमने राम मंदिर के नाम पे जितना भी खून बहा है, 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर पूरा जिस लेवल पे करप्शन हुई है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन स्टार्टिंग से ही होना चाहिए था ना। जिस चीज के लिए तुमने इतना लड़ा, उसी को अगर सही से मेंटेन ही नहीं कर पाए, तो लोगों को तो गुस्सा रहेगा ही ना। और दोनों तरफ से गुस्सा जायज है, दूसरी तरफ से गुस्सा आ रहा है, देयर करेक्ट। भाई क्या ही बताएं। अभी तो बोल रहे कि Same goes, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को बोले क्या आ रहा है मैनेज करने के लिए। अभी क्यों क्यों ला रहे हैं, दैट्स द क्वेश्चन, अभी क्यों ला रहे हैं। वो स्टार्टिंग से ये स्ट्रक्चर सब, नहीं है ना किसी भी चीज का। हाँ तो नहीं, स्ट्रक्चर नहीं है बोलना प्रॉब्लमेटिक है। ये सब और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज करने के लिए तुम दे देते ना, कि ईवाई, फिर दूसरे जो कंपनीज है, नाम बता ना, डेलॉयट, इनको तुम हैंड ओवर करके कि यू टेक द चीज थिंग्स, मेक ए स्ट्रक्चर, बी देयर फॉर 2 years, चेक थिंग्स आउट, हैंड ओवर, सिंपल से कर सकते थे। इट्स वेरी सिंपल, चीजें एवरीथिंग इज रिटन। आज के दिन में ऐसी चीज नहीं है कि तुमको जीरो से करना पड़ रहा है।
एवरीथिंग इज देयर, एवरीथिंग इज रिटन, पीपल आर कॉम्पिटेंट। जस्ट यही है कि विल नहीं है, मैं हमेशा बोल रहा हूँ विल नहीं है, लोगों का विल ही नहीं है, पॉलिटिकल विल नहीं है, और लोअर लेवल पे लोगों का विल नहीं है। लोगों को क्या है कि फ्री की चीजें चाहिए, मेरे को भी फ्री की चीजें चाहिए, सबको फ्री की चीजें चाहिए, ऐसे करके देश नहीं चलता। Yeah. सिंपल सा। या गणेश यू आर राइट। क्या बोल सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे। अब गवर्नमेंट तो कर ही रही है, अपने पेस पे कर रही है। ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम, ऐसा नहीं काम नहीं हो रहा, बट ऑब्वियसली इट्स वेरी स्लो। तो तो ये मानसून के बारे में आते हैं, तो वी कैन डू स्टफ एट द कम्युनिटी लेवल, यू नो, ऑर्गेनाइज क्लीन अप्स ऑफ द ट्रेन्स, बैन प्लास्टिक। पता नहीं कितने स्टेट्स में प्लास्टिक बैन है, हमारे नागालैंड में तो बैन ही है बहुत टाइम तक। पेपर बैग्स आर अब यूज्ड। बैनिंग प्लास्टिक्स डायरेक्टली वोंट वर्क ना, डायरेक्टली एक बार के लिए देखा जाए तो आई थिंक प्लास्टिक इज देयर टू स्टे। या बट द क्वेश्चन इज प्लास्टिक को मैनेज कैसे करना है। जैसे दूसरे कंट्रीज में आते हैं कि दे हैव स्पेसिफिक बकेट्स फॉर कि जो प्लास्टिक तुमने लाया है मार्केट से उसको डिस्पोज करने का प्रोसेस है। इंडिया में क्या कि प्लास्टिक का मैन्युफैक्चर है, डिस्पोजल नहीं। कुछ नॉर्मल चीज़ें तो फेंकते नहीं है डस्टबिन पे, तो मुझे लगता है प्लास्टिक को अलग जगह फेंकेंगे, देन प्लास्टिक को अलग जगह फेंकेंगे। इतना टाइम है किसी के पास? एडुकेशन, एडुकेशन ना, बहुत एडुकेशन 50 साल लग वही तो जाएंगे ऐसे। देखो। अगर करेंगे नहीं तो जो जिस जगह पे हो वहीं पे यू बैन ही कर देते हैं। हैव। तुमने देखा होगा, हम नागालैंड में तो नहीं है। alternatives have not been developed or cost effective as of now। अगर नेशनल लेवल पे रोल आउट करती है विद द पुश ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑब्वियसली कर सकती है। मैंने क्या बोला, पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल विल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सिंगापुर को देख लो ना, उन्होंने लैंग्वेज मैंडेट किया इंग्लिश। इंडिया में मैं बोलता हूँ संस्कृत कर देते, कितने साल लगता, कर देते। संस्कृत कोई माइंड नहीं करता है, इंग्लिश कोई नहीं माइंड करेगा। इंग्लिश तो डिफैक्टो सेकंड लैंग्वेज है, स्टेट्स अपने लैंग्वेज को लेकर लड़ते रहते हैं कि साउथ इंडिया में भी 4 स्टेट्स देखो से कि कौन सा लैंग्वेज उनका बेटर है। संस्कृत को लेके तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया पे एग्री करते हैं। तो स्टार्टिंग से संस्कृत करना चाहिए था और सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश करना चाहिए था, और मैंडेट करना चाहिए था कि दिस टू लैंग्वेज, बिकॉज यूनिटी रहती। आज के दिन में लैंग्वेज के बेसिस पे भी स्टेट्स में झगड़ा हो रहा है। तो जो मानसून को लेके चीजें हैं, पीपल नीड्स टू बी मोर एजुकेटेड। टेक्नोलॉजी बस दे देना नहीं है, तुमको पहले भी बोला था, बिल्डिंग खड़ा कर देना सफिशिएंट नहीं है। नेक्स्ट लेवल ऑफ थिंग्स आल्सो नीड्स टू बी डिसाइडेड। प्लास्टिक बना देना सफिशिएंट नहीं है, डिस्पोजेबल की चीजें भी हो जाना चाहिए था। पीपल के पास टेक्नोलॉजी दे देना सफिशिएंट नहीं है, वो टेक्नोलॉजी को डील करने के लिए भी वो ट्रेनिंग चाहिए। वो ट्रेनिंग बस एजुकेशन से आ सकती है। एवरीथिंग इज डाउन टू एजुकेशन, एवरीथिंग। 99% कॉजेस एजुकेशन से सॉल्व हो सकती है। लेकिन हमने बच्चों को स्कूल में रखने के लिए क्या किया, मिड डे मील्स। गुड थिंग, आई से दैट इट्स गुड। अब मिड डे मील को लेके कहाँ तक चले गए हम लोग कि मिड डे मील्स की क्वालिटी देख लो। तो बच्चे स्कूल में बस खाना खाना आते हैं, और जिस खाने के बारे में बात कर रहे हैं वो भी इट्स नॉट अप टू स्टैंडर्ड्स। यस इट इज नॉट। सो व्हाट्स योर टेक? कंट्रोवर्सी बहुत हुआ अभी मिड डे मील को लेके, वेस्ट बंगाल में ही हुआ था आई थिंक, कि there are two sides. People who say that eggs should be included, and some people are saying that there are better alternatives to eggs, like soybean and other stuff, which are cheaper also. बाकी लोग तो और भी एक्सट्रीम में चले गए, चिकन और क्या क्या है, तो मीम्स तो देखा ही होगा तुमने। प्रॉब्लम मेरे को लगा कि इट्स नॉट एग्जैक्टली क्लियर, ब्लैक एंड व्हाइट एग्जैक्टली तुम डिफाइन नहीं कर सकते एग्जैक्टली कहाँ पे इश्यूज है। वन ऑफ द थिंग इज, इन्होंने जो इस्कॉन है उनको बोला है कि यू मेक द फूड। द थिंग इज इस्कॉन एज अ प्रोवाइडर, किचन में जो खाना बना के जो प्रोवाइड करते थे स्कूल्स एंड फॉर मिड डे मील्स एक्सेट्रा, इस्कॉन इटसेल्फ इज अ रिलीजियस बॉडी। तो उनके भी कुछ पैरामीटर्स है ना, दे कैन नॉट मेक एग्स, ये सब चीजें उनके दायरे में आता है। गवर्नमेंट टुक दैट स्टेप कि उनको दिया है। आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप इन द सेंस कि बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशन के लेवल्स को मेजर कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बिकॉज मैंने पानी वाला दाल भी देखा है स्कूल्स में देते हुए, आई और सॉ स्कूल में दैट देखा विद है माय हम ओन लोगों ने, आईज। स्कूल में गया है। तो सिंपली अगर मिड डे मील्स के लेवल्स को अगर स्टैंडर्डाइज किया जा सकता है थ्रू इंस्टीट्यूशंस लाइक इस्कॉन एंड डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस ऑल टुगेदर। अक्षय पात्रा करके भी एक इंस्टीट्यूशन है, आई थिंक, आई फॉरगॉट कि 100% मैं करेक्ट हूं कि नहीं। तो ये सब इंस्टीट्यूशंस दे कैन मैनेज द लेवल जहां पे घपला होने के चांसेस आर वेरी स्लिम, बिकॉज इट्स वेल मैनेज्ड, इट्स अ वेल ऑयल्ड मशीन यू कैन से। एक तो वो हो गया। दूसरा है कि मेनी पीपल आर सेइंग कि बंगाल का कल्चर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया, जहाँ पे हमारे प्राइमरी सोर्स ऑफ डाइट इज फिश, चिकन एंड एग्स। ये सब हमारे नॉर्मल डाइट का हिस्सा है, जो दूसरी जगहों में इनको समझ आएगा कि नहीं पता नहीं। तो अचानक से जहाँ पे एग्स वेर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द डाइट, कि बाकी फीका दाल भी हो जाए, हमको पता है कि 2 अंडे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अचानक से वो थिंकिंग अगर तुम चेंज कर दोगे तो लोगों को समझ नहीं आएगा कि ये डिफरेंस हुआ तो क्यों हुआ है। और बहुत बार ये मील चेंजेस के वजह से एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है। मैं कॉलेज में था, आई वाज इन अ प्लेस वेयर नॉनवेज नहीं मिलती थी,
तो ऐसा लगता था कि खाना खा रहा हूँ लेकिन बॉडी में जान नहीं है। तो एवरी मंथ में भी मैं एक बार जाता था बाहर की थोड़ा बहुत चिकन ये सब खा के आऊँ, तब जाके ऐसा लगता था कि पेट भरा है बहुत दिन बाद। तो आई थिंक इट्स साइकोलॉजिकल नॉट जस्ट न्यूट्रिशनल ना। तो अचानक से तुम एक कोई चीज़ को बनी-बनाई चीज़ को तुम ट्रांजिशन करोगे, दैट्स नॉट सफिशिएंट। बहुत लोग क्या बोलते हैं, तुम खाना लेके आओ, देन जो अंडा का जो सप्लाई है गिव इट टू द देम, टू द स्कूल्स। अंडा तो अब क्या करना है, बस उबालना ही तो है, सिंपल एज़ दैट। तो अंडा का सप्लाई अलग रखो और खाने का सप्लाई अलग रखो, प्लेट पे जाते वक़्त जिसको चाहिए दे दो। दैट इज़ द मोस्ट कंपेलिंग आर्गुमेंट दैट आई हैव हर्ड फ्रॉम डिफरेंट पार्टीज़ ऑल टुगेदर। लेकिन करंटली आई फील कि जिस रास्ते पे चल रहा है इट्स गुड। और ये भी है कि एट द मोमेंट मिड डे स्कीम इज यूनिवर्सल ना, पूरे इंडिया में लागू है। महीने में लागू है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स यस, गवर्नमेंट स्कूल्स। मोस्टली। तो वी हैव टू सी दैट काफ़ी टाइम हो गया, तो 90s में चालू हुआ था मिड डे स्कूल वाला, मिड डे मील वाला, 90s 80s में। We have to see that which region it meets those kinds of facilities the most, and then and then design our meal according to that community or district. As a same meal for every other state, that is not going to work. Obviously, it will create controversy. मुझे लगता है states वगैरह को दे देना चाहिए कि and they should design the meals themselves according to their requirements. People in India and people in the rest of the world both are in the delusion that India is a single place. You can, for me, the closest reference of India is, think of India like Europe, and each country of Europe like a state of India, and each state of India has 2 to 5 times more population with a comparable size of the same uh, country in Europe. Each European country has different tradition, different language. Same goes for India. So India is not a single place. You have to see that. तो whatever you said, I definitely agree with that कि सब जगह का खाना सेम नहीं है। Every people has different religions opinion. किसी चीज़ों में हम लोग सेम करना पड़ेगा। Some things we have to change. Yeah. अब कौन सी चीज़ें हैं ये सब गवर्नमेंट को फिगर आउट करना है। There are sufficient technology, sufficient things people can do. People are greedy. Greed खत्म नहीं होती। लोग 1 करोड़ में खुश नहीं है। उनको 100 करोड़ चाहिए। 100 करोड़ वाले को 1000 करोड़ चाहिए, 1000 करोड़ वाले को बिलियनर बनना है। बिलियनर बनना है उनको, खुश नहीं हो पा रहे, मतलब कितना खाएंगे भाई। देखो, डिफरेंस इज इलॉन मस्क को खाने से मतलब नहीं है। इलॉन मस्क का है कि ही सीज मनी एज पोटेंशियल एनर्जी दैट ही कैन हार्नेस एंड यूज इट एज फ्यूल टू अचीव हिज विजन। एक आईएएस ले लेते हैं, कल ही रिटायर होने वाला था। आईएएस था, आई थिंक आईएएस था, आईएएस ऑफिसर। रिटायरमेंट के एक दिन पकड़ा गया कुछ 400-500 करोड़ का स्कैम। तो आई फील कि वो 400 करोड़ का करेगा क्या? दैट्स द क्वेश्चन, मतलब क्या करेगा? मैं जो मानता हूं, a person in India who has a net worth of 20 crores पूरा जिंदगी बैठ के खा सकता है एंड एक आयोटा का भी ना फर्क नहीं पड़ने वाला Yeah. लाइफस्टाइल में, नॉट इवन वन, नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप। मतलब 5 करोड़ के कार में और 50 लाख के कार में कितना ही फर्क है। रास्ता है, तुम चला लोगे 250 पे। तो एक लेवल ऑफ वो होता नहीं है कि एंटाइटलमेंट बोल लो, कुछ भी बोल लो, भूख खत्म नहीं होती। Book. अगर ह्यूमैनिटी के तरफ, मैं तो बोलता हूँ कि भूख हो रहनी चाहिए ना सही डायरेक्शन पे, कि पीपल शुड नॉट डाई इन अननेसेसरी वॉर्स। रिलीजन के नाम पे जितना कम कत्ल हो सके। थोड़े दिन पहले एक मॉब लिंचिंग ड्यू टू काउ स्लॉटर के वजह से एक जज ने जजमेंट दिया फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर 4 to 5 पीपल। मैटर ऑफ फैक्ट और कोइंसिडेंस देखो, जो जज था या फिर थी, आई एम नॉट श्योर, वाज अ मुस्लिम। लेकिन उसका जो जजमेंट था इट वाज करेक्ट ना, कि बिना जाने समझे तुमने एक बंदे को मार दिया कि ही वाज क्या बोलते, काउ काउ स्लॉटर किया होगा, मीट सप्लाई कर रहा होगा, बिना जाने जाने समझे तुमने मार दिया। बाद में भी पता लगा हुआ होगा कि ही डिड नॉट डू इट बट स्टिल पीपल किल्ड हिम। ड्यू प्रोसेस भी नहीं है, अब जज को थ्रेट्स आ रहे हैं। सेम चीज देखो ना, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, बाबरी मस्जिद के टाइम पे खून खराबा रोकने के लिए आज भी प्रोटेस्ट हो रहे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। जजमेंट आने के बाद दे बैक्ड ऑफ ना, बिकॉज उनको भरोसा है इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कि उनके जजमेंट उन्होंने बहुत सोच समझ के दिया होगा। सेम गोल कि हिंदू के खिलाफ एक जज, मुस्लिम जज ने वो नहीं किया था। जो रूल था उसके हिसाब से उन्होंने जजमेंट दी कि दे रिक्वायर्ड कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो। रूल्स ने बोला है, अपने से तो मनमानी किया नहीं होगा। करप्शन इज देयर, लेकिन जिस लेवल पे ये लोग बोलते हैं ना जुडिशरी में, उतना भी नहीं है। आई स्टिल फील कि जुडिशरी इज अ गुड आर्म, जस्ट दैट दे आर हैंडीकैप्ड।
एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। रीजंस एवरीबॉडी नोज, गूगल इट।